Okay. Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, Very good sir. morning, sir. Okay. Good morning. In last lecture, we have discussed about the unit number two, and in unit number two, we already discussed about the 2.1, and it is related to complex number and its geometrical interpretation. Okay. So we have completed our first topic of the unit 2, 2.1. Now today I am going to discuss about the 2.2, and it is the polar form and exponential form of a complex number. Okay, so I think this is the revision for you because you already learned this topic in your 11th. So this is the revision of that. So second point is complex numbers in polar and exponential form. Okay, so you have the idea about this, but there is some new concept for you, so we will discuss here. So complex number in the polar or exponential form. So is it visible, everybody? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so then next one. Okay, so here you can see that the whenever you talk about the polar form, so what are the consideration? Whenever we convert any Cartesian form to polar form, then what are the coordinates of polar form? So there are two Theta. coordinates. Yes, x Theta, is equal theta. to r cos theta and y is equal to r sin theta. These two replacements for the polar coordinates. Okay, so here what is r? So r is the distance from origin to point P, and उसको हम क्या बोलते थे? Modulus of z भी बोलते थे कि नहीं? In 2.1, yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, Yes. sir. sir. Yes, sir. So this is the distance from origin to point P, and here P is xy. Given xy, that means z is equal to x plus iy. We can also write into order pair xy. Okay. So here the P is the given point and r is the distance from origin to point P. And what about the angle theta? Amplitude argument. So it is nothing but the angle of that line टू दी एक्स एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस से वो जो लाइन है हमारा ओपी, उसके बीच का जो भी एंगल होगा दैट इज अवर थीटा, एंड उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, एंड जो आर है वो हमारा क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड हो जाएगा. इट इज क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. let P be a point in the complex plane corresponding to the complex number z is equal to x plus iy. So from the diagram above we can see that x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. तो ये आया कहाँ से? तो अगर आप देखेंगे तो थीटा के बारे में सोचेंगे तो हमको पता है कि व्हाट इज द cos थीटा एंड व्हाट इज द sin थीटा. सो यहाँ पे आप देखेंगे तो cos थीटा मीन्स क्या होगा? x by r हो जाएगा, है ना? So x by r, and sin theta means, X by R. sin theta Y means by R. pi by r. So if you subject x, then x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta we have. Okay, so we can convert any Cartesian form to polar form by considering x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. We can also say that it is not considering, it is derived, है ना? हमने ये फिगर से डिराइव किया ना इसको. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, then next one. So we have seen that the modulus of z is equal to x plus iy. ये हमको पता है कि modulus of z is equal to square root of x square plus y square होता है. So it is nothing but our r. So we take r is equal to modulus of z. It is the distance from origin to point P. Origin means 0, 0 to xy. Okay. In fact, it is the magnitude of the vector OP as I discussed here. Okay. And theta from the above figure, what is my tan theta? Tan theta is equal to y by x. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if you make the theta subject, that means theta is equal to tan inverse y by x we have. Okay, so we have the two new concept, r is equal to modulus z and theta is equal to tan inverse y by x from this figure. So is there any doubt, any question in this slide?
No, sir. No. No, sir. ओके, देन नेक्स्ट वन, जो थीटा है उसको हमको एक सिंबल देना है, उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलेंगे, लेकिन उसका सिंबल क्या होगा, ए आर जी ऑफ जेड। ओके, उसका दूसरा नेम है एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड of the complex number z is equal to x plus iy is defined as arg of z is equal to theta is equal to tan inverse y by x. In fact, it is the angle between x axis and the line segment OP. मैंने ये बताया ना आपको फिगर में कि थीटा क्या होगा, तो एंगल बिटवीन x axis and the line segment OP. Is it clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we go for the our form of complex number. So the complex number z can be written as z is equal to x plus iy. So z is equal to x plus iy में अगर हम substitute करें, x is equal to r cos theta plus i r sin theta हो जाएगा हमारे पास, yes or no? Yes, sir. So if you take r common, then r bracket cos theta plus I sin theta, and if you convert it into exponential form, so cos theta plus I sin theta is nothing but e raised to I theta as per Euler. So r into e raised to I theta is the exponential form, and the polar form is r bracket cos theta plus I sin theta. So is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये जो फॉर्म है उसको हम बोलेंगे पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ये जो फॉर्म है r इंटू ई रेज टू आई थीटा उसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sometimes it is also denoted by this way, z is equal to r into cis theta. Cis means cos theta plus I sin theta. Iota sign. Yes, okay, so this is the short form. So z is equal to r cis theta is the polar form of the complex number. Okay, so which is known as the polar form of the complex number. And here there are two different नोटेशन फॉर थीटा। सो थीटा के पास दो डिफरेंट नोटेशन है, कौन कौन से, एक तो स्मॉल ए आर जी ऑफ जेड एंड एक कैपिटल ए आर जी ऑफ जेड। सो वी हैव टू डिफरेंट आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड। सो स्मॉल ए आर जी ऑफ जेड जो है वो उसको हम बोलेंगे जनरल आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे हम? जनरल। यस Argument. यस, एंड जो कैपिटल ए आर जी ऑफ जेड है वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, सो वी हैव टू डिफरेंट, सॉरी हाँ, वी हैव टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। नंबर वन इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड नंबर टू इज जनरल आर्ग्यूमेंट। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किसको बोलेंगे? इफ द थीटा इज रनिंग बिटवीन माइनस पाई टू पाई देन इट इज नोन एज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एंड इफ you add that theta plus or minus 2k pi, then that argument is known as the general argument or general value of the argument of z. So for the complex number z not equal to 0, there corresponds only one value of theta in minus pi less than theta less or equal to pi. So this value of theta is called the value of the principal argument of z, and interval is called the principal range. Whatever we have the interval, then it is known as the principal range, and it is denoted by capital ARG of z. Also, ARG of z is equal to theta plus or minus 2k pi, where k belongs to z, okay, plus or minus इसलिए k belongs to z, is called the general value of the argument of z. Because उसको हम क्यों ऐसे बोलेंगे? So because we know that tan theta plus or minus 2k pi is nothing but tan theta. That's why we can compare or we can transfer this form into general form. Is there any question, any doubt in this slide? Sir. Yes. K is equal to Sir, 0 ये होगा तो Sorry. Yes. जनरल फॉर्म में K is equal to 0 रखेंगे। हाँ, तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके। ओके, तो सर ऐसा बोल सकते हैं ना कि जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू कैपिटल ए आर जी ऑफ z प्लस माइनस 2k पाई। very true, very true. Yes, it is correct.
ओके, वो हम वही करने वाले हैं कि हम पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, और इफ यू वांट टू गो फॉर द जनरल आर्ग्यूमेंट देन दिस इज द जनरल आर्ग्यूमेंट a at g of z plus or minus 2k pi and where k belongs to z. Clear? Yes. Yes. Okay, then next one and very important for you. So note number 1, every complex number x plus iy can always be expressed in the form r cos theta plus I sin theta. Means if you have the Cartesian form of any complex number, then you can transfer that Cartesian form into polar form. Okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और ये जो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमको, व्हाट वी डू, यस R fine, sir. Theta yes find करना पड़ेगा. we find r and theta. Okay, then we got our polar form. This note number 2 and note number 3 is very important for you for MCQ as well as the examples. Okay, so you can see here, consider a complex number z is equal to a plus ib. तो यहाँ पे मैं थोड़ा फिगर से भी आपको दिखा देता हूँ, नोट नंबर 2. ओके ओके, सो z is equal to a plus ib मेरे पास है. नोट नंबर a, if b is equal to 0 and a greater equal to 0 then theta is equal to 0. so सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉइंट आएगा कहाँ पे, where it is, First quote. फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नो, मतलब राइट साइड वाली एक्स एक्सिस पे. यस वेरी गुड, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है. ओके, सो दिस एक्सिस इज डिनोटेड बाय थीटा इज इक्वल टू 0 आल्सो. क्लियर एवरीबॉडी? तो सारे पॉइंट यहाँ पे है, देखो आप, डन. सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसका आपको थीटा फाइंड करने के लिए बोला है, देन इट इज ऑलवेज 0. क्लियर? Yes, sir. Any question, anybody? Okay, second b, if b is equal to 0 and a less than 0 then okay, चलो Negative x. Negative. x axis. Very good. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट कौन से एंगल पे होंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई. इफ यू मेजर दिस एंगल देन दिस इज ऑलवेज 180 एंड इट इज थीटा इज इक्वल टू पाई. ओके, सी, a is equal to 0 and b greater than 0. Which axis is this? Positive y. Positive y. Positive y. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ. ओके, सो पॉजिटिव y axis. Okay, so this is our positive y axis and angle is theta is equal to pi by 2. Okay, next d, if a is equal to 0 and b less than 0 then which axis is this? Negative y axis. Okay, so this axis is also denoted by theta is equal to minus pi by 2. So this is the geometrical representation of node number 2, and if you have the any complex number from this a b c d then you can directly define the angle or amplitude or argument of that complex number easily. Yes or no? Yes, sir. Okay, so then note number 3, and this one is very important for you. Okay, so let z is equal to a plus ib is a complex number if a not equal to 0 b not equal, means हमने जो a equal to 0 and b equal to 0 वाले सारे केस ऊपर नोट नंबर 2 में डिस्कस कर लिए. नाउ दोनों ही दोनों नॉन जीरो है, तब क्या होगा, सो वी कंसीडर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, और वो भी b बाय a का भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको कंसीडर करना है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर a greater than 0 b greater than 0, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉइंट First. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एंगल फाइंड करने के लिए दिया जाए, ऑलवेज थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ b बाय a होगा. क्लियर? ओके Yes. ओके, सेकंड a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, कौन से क्वाड्रेंट?
Second quadrant. Second quadrant. Okay, second quadrant. So in second quadrant, theta is equal to pi minus alpha. That means pi minus tan inverse modulus of by a. This one is the amplitude of the second quadrant of points. Done? Okay. See, a less than 0, b less than 0. Third quadrant. Quadrant. Third one. Okay, so this c indicates third quadrant. So in third quadrants, each point or each complex number has the argument theta is equal to minus pi plus alpha. It is minus pi plus tan inverse modulus of b by a. Clear, everybody? Yes, sir. Yes. And D, A greater than 0, B less than 0. Okay, so it indicates quadrant number 4. 4. Fourth. So, A greater than 0, B less than 0. So theta is equal to minus alpha. That means theta is equal to minus alpha is equal to minus tan inverse modulus of B by A. Okay. So this is the geometrical representation of node number 2 and node number 3. You take a screenshot of this slide. Okay. Yes, sir. सर इसमें जो थीटा है चारों हाँ? मत तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना. हाँ, principal. These all means note number 3 indicates the principal argument. और अल्फा जनरल. हाँ, अल्फा जनरल नहीं है, वो हमने क्या किया उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो हमारा b बाई ए वाला फॉर्म था उसका एब्सोल्यूट ले लिया. अगर क्या होगा हमने नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ कैसे वो वेरी होता है. मींस b जब नेगेटिव है, a नेगेटिव है, तो उस हिसाब से आपको क्वाड्रेंट फिक्स करना है और उसके बाद ये एंगल आपको कंसिडर करना है इस हिसाब से. डन? यस सर. Okay. So is there any doubt, any question in this slide? Because this slide is very, very important for you. नो सर. No, sir. Okay. Okay. Then we go for next. Example number 1. Represent following complex number in polar form with the principal argument. Okay, तो आपको दे ही दिया है कि principal argument के लिए करना है. तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं x एंड y फिक्स करूंगा पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उससे. उसके बाद मैं r फाइंड करूंगा. r कैसे फाइंड करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. उसके बाद मैं थीटा फाइंड करूंगा. कैसे फाइंड करूंगा थीटा, थीटा के लिए पहले मैं क्वाड्रेंट फिक्स करूंगा. यस, क्वाड्रेंट फिक्स करने के बाद उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइन करूंगा. क्लियर एवरीबॉडी? गॉट इट? यस. Yes, sir. Okay. So here my what is my x and y? माइनस 4 and 4 and 4. X is equal to minus 4 and y is equal to 4. Yes, very 4 root good. 2. So 4 root 16, 2. 16, it gives me 4 root 2. Okay, so 4 root 2 is my r. Now theta, theta means with 3 pi by 4. Pi minus. Pi minus. लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है ये? Second. सेकंड क्वाड्रेंट. Second. सेकंड Pi क्वाड्रेंट में. minus alpha. तो पाई माइनस अल्फा Minus pi plus pi by 4. tan इनवर्स p by a. पाई माइनस होगा या माइनस पाई प्लस होगा? Pi minus. पाई माइनस. Pi minus. यस, वो कंफ्यूजन मत करना. ओके, सो tan इनवर्स b, b मींस मेरा क्या है 4 by 4, 4 by minus 4 और उसका एब्सोल्यूट लेना है. दैट मींस पाई माइनस tan इनवर्स 1. सो tan इनवर्स 1 मींस Pi by 4. 5 by 4. 5 by 4. 4 and it gives me 3 pi by 4. 3 pi by 4. 3 pi by 4. थीटा मेरा मिल गया, r मिल गया. जो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z is equal to r cos theta plus I sin theta. so r means मेरा 4 root 2, cos theta means cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. Okay,
So this is my Z or complex polar form of the given complex number. अब आपको इसमें इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वापस आपको वही का वही फॉर्म मिल जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can see here also, here Z is equal to minus 4 plus 4i, x is equal to minus 4, y is equal to 4. So r is equal to square root of x square plus y square. It gives me 4 root 2, जिसे हमने अभी डिस्कस किया. And theta is equal to pi minus tan inverse y by x, and it gives me 3 pi by 4. So the required polar form is Z is equal to r cos theta plus I sin theta is equal to 4 root 2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. अगर आपको यहाँ पे पूछा होता कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करो तो क्या होता? Z equals to E raised to I. 4 root 2 e raised to I 3 pi by 4. यस, वेरी गुड. दैट मीन्स आपको ई में लिखना है. ओके, तो यहाँ पे r इंटू ई रेस टू आई थीटा होता है. इसका फॉर्म क्या होता है? r इंटू ई रेस टू आई थीटा. तो r की जगह पे मैं 4 रूट 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड थीटा की जगह पे 3 पाई बाय 4. दैट इज माय एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर एवरीबॉडी? सर यस यस बेटा. y बाय एक्स माइनस 1 नहीं आएगा सर? y बाय x का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया ना, मॉड्यूलस. ओके सर ओके. यहाँ पे y बाय एक्स वाली, हाँ, क्योंकि ये b तो यहाँ पे हम लिया था आगे वाले में. यहाँ पे y बाय एक्स लेंगे ना, क्योंकि हमने x y से किया है. डन? ओके. Yes. ओके, सो नेक्स्ट माइनस 25i. सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 25. कहाँ पे आएगा ये? माइनस y Negative Y. माइनस वाई एक्सिस. Minus negative. यस, नेगेटिव y एक्सिस कौन सा थीटा रिप्रेजेंट करती है? minus Minus pi pi by 2. minus pi by 2. माइनस पाई बाई 2. तो सीधा आपको r ही फाइंड करना बाकी बचा है ना, वो दूसरा तो आपको सीधा मिल गया. 25. Yes, 25. r is equal to square root x square plus y square. So square root of 0 square plus minus 25 square, it gives me 25. And theta is equal to tan inverse y by x. So tan inverse minus tan inverse y by x होगा, उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना ये. ओके, Yes, sir. माइनस टेन इनवर्स y मीन्स आपका ये हो जाएगा माइनस 25 डिवाइड बाई 0. इट इज इंफिनिटिव, सो माइनस पाई बाई 2, क्योंकि टेन इनवर्स इंफिनिटी मीन्स पाई बाई 2. ओके, सो द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू 25 cos minus pi by 2 plus I sin minus pi by 2. So here 25. Okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, we know that cos minus theta is equal to what, and sin minus theta. Yes, so cos minus Cos theta theta. is cos theta. Minus sin theta. Minus theta means sin minus sin theta. Okay, so we are using here, okay, using that. So minus will be plus, so cos pi by 2, and sin minus pi by 2 means minus I sin pi by 2. अब ये क्यों होता है? Because cos is the even function and sin is the Yugma. Odd function. okay. So this is the required polar form. So is there any doubt in this example? No, sir. Okay. Yes, yes, बेटा. तो माइनस y एक्सिस को फोर्थ क्वाड्रेंट थोड़ी बोलेंगे. नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं बोलते, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट करो. हम फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? माइनस होता है ना, माइनस टेन इनवर्स. आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको ऑटोमेटिकली माइनस पाई बाई 2 मिल जाएगा. अगर आपको ये इंडिकेट नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दी नोट नंबर 2 एंड पुट हियर थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 डायरेक्टली, लेकिन वो नोट आपको मेंशन करना पड़ेगा. ओके, ये हमने यूजुअल मेथड से किया, हर एक में हम यही करेंगे इसलिए. डन? ओके सर. ओके, नेक्स्ट फाइंड द मॉड्यूलस और मॉड्यूली एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पे देखो थोड़ा स्टेटमेंट ही चेंज किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज ही है. मॉड्यूलस मींस क्या करना है आपको? Mod of the R फाइंड करना. मॉड्यूलस z मींस R r find arithmetic. Yes, and argument means थीटा. थीटा. ओके, तो आपको फाइंड तो वही का वही करना है, सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करके दिया. ओके, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट है a,
वो 1 प्लस आई अपॉन 2i माइनस 1 है, तो इसका डायरेक्ट हम r एंड थीटा फाइंड कर पाएंगे? हाँ, no. minus 2 No, I sir. मल्टीप्लाई करेंगे पहले प्लस इसको 1 2i a प्लस आई बी और x प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वी हैव x एंड y एंड देन वी गो फॉर द मॉड्यूलस एंड argument. Okay, so here to convert this complex number into x plus iy form, you have to multiply by conjugate of 2i minus 1 multiply and divide. Okay, so यहाँ पे minus 2i minus 1 minus 2i minus 1 is the conjugate of denominator, तो उससे मैंने multiply and divide किया. Now you can multiply numerator and denominator individually. So 1 plus I minus 2i minus 1 2i minus 1 minus 2i minus 1. So आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो minus 1 minus 2i, okay, minus I minus 2i square. Clear everybody? Divide by यहाँ पे x minus y, यहाँ पे x minus y x plus y फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? x square minus y square हो जाएगा, यस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको मिला 1 माइनस 3i डिवाइड बाय 1 माइनस 4i स्क्वायर, तो 1 माइनस 3i अपॉन 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 मीन्स 5 एंड 1 माइनस 3i, सो 1 माइनस 3i अपॉन 5. तो यहाँ पे इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 इंटू i. सो व्हाट इज माई x एंड y? 1 by 5 1 by 5 1 by 5. y is equal to minus 3 by 5. Yes, y is minus 3 by 5 and x is 1 by 5. Now we can go for the modulus. Okay, so therefore the modulus of complex number is modulus of z is equal to r is equal to square root x square plus y square is equal to square root of 1 by 5 square plus minus 3 by 5 square, and it is 1 upon 25 plus 9 upon 25, so total will be 10 upon 25. और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले 5 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 5. Clear? So this is my modulus and we go for the argument. So argument of theta is equal to tan inverse y by x होता है, लेकिन यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? ये जो नया जो हमने डिराइव किया फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सो आप यहाँ पे ये जो मैंने किया है उससे इसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस tan इनवर्स जो हमारी नॉट है उस हिसाब से, सॉरी y by x. ओके, सो ईयर माइनस tan इनवर्स y by x अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 by 5 अपॉन 1 by 5. ओके, तो माइनस tan इनवर्स 3 आपको मिलेगा. और आपने मैंने किया ऐसे किएंगे तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स मैंने क्या किया माइनस 3 by 5 अपॉन 1 by 5 जो हमारा मेन डेफिनेशन है उसका मैंने यहाँ पे यूज किया. तो यहाँ पे जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 बचेगा, तो tan इनवर्स माइनस 3. लेकिन यू नो दैट tan इनवर्स माइनस 3 इज नथिंग बट माइनस ऑफ tan इनवर्स 3. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So this is the modulus and argument of the given complex number A. Okay, so is there any doubt? No, sir. No, Okay. sir. यहाँ पे कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करो या फिर जनरल आर्गुमेंट. जब ये दोनों वर्ड होता है तभी आपको उस हिसाब से स्पेसिफाई करना है, नहीं तो सीधा हम जो करते हैं वही करना है, प्रिंसिपल ही फाइंड कर देना. डन? ओके. Yes. Okay, okay. Okay, then minus 5i. Okay, so here z is equal to minus 5i, तो मॉड्यूलस ऑफ z हो जाएगा 5 एंड आर्गुमेंट तो आपको पता ही है क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस पे है तो माइनस पाई बाई 2 होगा. सो इज देयर एनी डाउट? No, sir. No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, एक्सप्रेस z is equal to -2 minus root 3i इन पोलर फॉर्म. ओके, स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो गया कि क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफर करना है. तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो पोलर फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? R चाहिए, theta चाहिए. R and theta. R and theta. So z is equal to -2 minus root 3i. So x is equal to -2, y is equal to minus root 3. So r is equal to square root of x square plus y square से आप फाइंड करेंगे तो it gives you root 7, है ना? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ
थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x। तो यहाँ पे आप y एंड x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट गिव्स मी √3/2, tan इनवर्स √3/2। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ा मैंने नई तरीके से किया है। अब tan इनवर्स √3/2 का अगर आपको वैल्यू पता है किसी को? नहीं पता है ना? ओके, तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे कि आपको उसका कोई पाई वाला फॉर्म नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, उसको अल्फा से डिनोट कर देना है। दैट मीन्स -पाई प्लस अल्फा हो गया। यस सर। ओके, Yes, और sir. अल्फा को मेंशन करना मत भूलना, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। नाउ यू कैन substitute theta is equal to -पाई प्लस अल्फा इन अवर पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे देखो the required polar form is z is equal to r cos theta plus I sin theta is equal to r मेरा √7 है, cos -पाई प्लस अल्फा मेरा थीटा है, प्लस I sin -पाई प्लस अल्फा। दैट्स ऑल, क्लियर? लेकिन जब भी नहीं पता है तो इसको बड़ा बड़ा मत करो, है ना? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, आप उसका सब्स्टिट्यूशन ले लो, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। डन एवरीबॉडी? सर इसे थोड़ा सा सॉल्व नहीं करने का, अल्फा के फॉर्म में आंसर आ गया। नहीं करना है, नहीं करना है, ओके, क्योंकि इसको ये व्हाट इज दिस, यू डोंट अंडरस्टैंड आई थिंक। ये क्या है, सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन हम चेंज कर रहे हैं। जो XY में है उसी का रिप्रेजेंटेशन R थीटा में क्या होगा वही हमको देखना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, क्योंकि XY में जो Z है वो पोलर में कैसे दिखेगा वही, तो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। डन? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, Yes, sir. सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको कॉलेज में आपको विराज बुलाते हैं, ओके, लेकिन आप घर पे आपको कोई विराज बुलाएगा? नो सर। हाँ, तो फिर दिस इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन, बंदा वही का वही है, लेकिन क्या किया है हमने, उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है कि उसको हर बार विराज विराज न बोलना पड़े, इसलिए दूसरा नेम दे दिया। डन? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली। नाउ इट्स क्लियर? यस सर। Okay, so next example, find the capital ARG of Z, small ARG of Z and convert it into polar form if A, B and C. Okay, तो यहाँ पे देखो आपको बोला गया है कि कैपिटल ARG फाइंड करो, स्मॉल ARG फाइंड करो और उसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफर करो, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इज देयर एनी डाउट? कर सकते हो ना? यस सर। Yes. यस सर। So first z is equal to -1 minus I, तो x is equal to -1, y is equal to -1, I have, so r मेरा हो जाएगा √2। अब कैपिटल ARG पहले मिलेगा, तो कैपिटल ARG कौन से क्वाड्रेंट पे है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाय x, सो -पाई प्लस tan इनवर्स 1, सो -पाई प्लस tan इनवर्स 1 हमको पता है पाई का फॉर्म, सो पाई बाय 4 हो जाएगा, सो इट गिव्स मी -3 पाई बाय 4, एंड -3 पाई बाय 4 अगर मुझे मिलता है तो मेरा जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू ARG of Z plus or minus 2k pi. So ARG of Z is nothing but -3 pi by 4 plus or minus 2k pi, and k belongs to Z. तो पोलर फॉर्म क्या होगा? The required polar form is Z is equal to R cos theta plus I sin theta is equal to √2 cos -3 pi by 4 plus I sin -3 pi by 4। अब सिर्फ माइनस के लिए आपको सोचना है, तो cos के लिए वो प्लस हो जाता है, साइन के लिए वो माइनस बाहर आ जाएगा, सो -I sin 3 pi by 4। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा है तो क्या होगा, कौन बताएगा? √2 e की पावर -I3/4। ओके, सो √2 into e raised to I -3 pi by 4, या फिर उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, √2 e raised to -I 3 pi by 4। डन? ओके, ओके, चलो z इज इक्वल टू 1 प्लस I के लिए मुझे बताओ तो। R is equal to √2. Capital AR argand is equal to pi by 4. यस, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दोनों अगर आप थोड़ा एग्जामाइन करेंगे या फिर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों ही दोनों पॉइंट सेम ही है, सिर्फ क्या है उसका क्वाड्रेंट अलग अलग है। Okay, change. क्वाड्रेंट
ओके, तो जब भी ऐसे होता है तब आर सेम रहता है, एंगल में थोड़ा चेंज आता है, और एंगल क्या हो जाता है, जो भी आपका बीच में जो हमने विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो भी मिलता है दैट इज द आंसर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे you can see here z is equal to 1 plus I, so x is equal to 1, y is equal to 1, r मेरा √2, आर्ग्यू कैपिटल ARG ऑफ z क्या होगा मेरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नो चेंज, tan इनवर्स y by x होगा, tan इनवर्स 1 दैट मींस pi by 4, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। ओके, एंड स्मॉल ARG ऑफ z इज माय जनरल आर्गुमेंट, सो कैपिटल ARG ऑफ z प्लस और माइनस 2k pi, सो यहाँ पे कैपिटल ARG मेरा pi by 4 है, so pi by 4 plus or minus 2k pi, it gives me k belongs to z, and the required polar form is z is equal to r cos theta plus I sin theta is equal to √2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पता चल जाएगा ना? Yes, sir. So √2 into Yes, sir. is E to raised to I pi by 4. ओके pi by 4. ओके, सी z इज इक्वल टू -2 √3i, चलो इसके लिए r एंड थीटा फाइंड करो जल्दी। R is equal to 4. r इज इक्वल टू 4, चलो वेरीफाई करते हैं। Yes, Theta is equal to -2 pi by 3. ओके, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे r इज इक्वल टू 4 मिल गया सबको, Yes, sir. Yes, sir. एंड कैपिटल ARG -2 pi by 3. Minus 2 pi by 3. ये थर्ड क्वाड्रेंट में है अगेन, सो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ पाई बाय एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स -2 √3 बाई -2, इट गिव्स मी माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स √3, सो माइनस पाई प्लस √3 के लिए हो जाता है पाई बाय 3, सो यहाँ पे -2 पाई बाय 3 मिलेगा। ओके, कैपिटल ARG एंड स्मॉल ARG इज द जनरल आर्गुमेंट, सो कैपिटल ARG ऑफ z प्लस और माइनस 2k पाई, सो -2 पाई बाय 3 प्लस और माइनस 2k पाई, k belongs to z, so the required polar form is z is equal to r cos theta plus I sin theta, so यहाँ पे r means 4, यहाँ पे cos -2 pi by 3 plus I sin -2 pi by 3, so this is my polar form of given complex number। लेकिन यहाँ पे एक चीज भूल गए हम, क्या भूल गए? Cos 2 pi by 3 minus sin pi by 3 I sin 2 pi by 3, okay, done, clear? And exponential form 4 into e raised to minus I 2 pi by 3. yes, minus I 2 pi by 3. So is there any doubt in ABC? No, sir. No, sir. No. 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 Okay, then again we change only statement, so find modulus of z, capital ARG of z and small ARG of z for z is equal to I and z is equal to -8। चलो फटाफट फाइंड कर दो। Mod 1 pi theta by by 2. 2. Theta pi by 2. जो भी मिलता है चैट बॉक्स में लिखो, चलो whatever you have please write down in chat box। थीटा कैसे लिखें? क्या थीटा थीटा आप सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन सीधा लिखेंगे तो नोट आएगा, है ना, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे वे से जाओ, आई कहाँ पे आएगा, एक्सिस पे, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। z is equal to I, so x is equal to 0, y is equal to 1, मॉड्यूलस r होगा 1 और कैपिटल ARG होगा थीटा tan इनवर्स y by x, so tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y by x करेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी, ओके, so tan इनवर्स इंफिनिटी मींस pi by 2, डन, क्लियर? Yes. Yes, sir. एंड स्मॉल ARG अगर आप फाइंड करेंगे तो कैपिटल ARG ऑफ z प्लस और माइनस 2k पाई, सो इट गिव्स यू अ pi by 2 plus or minus 2k pi, done? Yes. K belongs to z, okay, and अभी कुछ बाकी बचा? वो रूलर बाकी ना। नहीं, कहाँ दिया है आपको स्टेटमेंट में? नहीं, वो रिप्रेजेंट कर देंगे, अच्छा लगेगा। यहाँ पे पूछा ही नहीं है तो नहीं करना है, जब भी पूछे तभी करो, ओके, डन? Yes. लेकिन यहाँ पे मैंने किया है क्योंकि बार बार वही चीज फिर से ना दिखाना पड़े इसीलिए, ओके, लेकिन जब भी जरूरत है तभी करना है, जरूरत नहीं है तो मत दिखाओ, है ना।
क्लियर? तो यहाँ पे पोलर फॉर्म भी आप देख सकते हो एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन अगर समटाइम्स 4 मार्क्स में पूछना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना, कि पोलर फॉर्म फाइंड करो या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डन, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, सो बी के लिए क्या होगा? मॉड्यूलस 8 यस, वेरी गुड। आर्गुमेंट -π/2 आर्ग्यूमेंट कैपिटल ARG ऑफ थीटा हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स y बाय एक्स, सो माइनस टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2। यस, एंड स्मॉल ARG ऑफ z, प्लस माइनस 2k पाई। यस, वेरी गुड, माइनस पाई बाय 2 प्लस और माइनस 2k पाई, k बिलोंग्स टू z। ओके, वो मत भूलना। इतना ही करना है। यस, इतना ही करना है, लेकिन मैं आपको पोलर फॉर्म भी दिखा देता हूँ। सो पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो 8 cos माइनस पाई बाय 2 प्लस i sin माइनस पाई बाय 2 एंड 8 cos पाई बाय 2 माइनस i sin पाई बाय 2। डन? ओके, सो इज देयर एनी डाउट इन टुडेज सेशन? नो सर No, no sir. sir no I think this is for you. Am I right? Yes sir. Okay. Okay. So if you have no doubt, then good day, happy weekend.